Hello students, I am your science teacher Smita Zambre, and today we are going to start our lesson The Living Organisms, Characteristics and Habitats. In the previous video of this lesson, we learned about the habitats, adaptation and journey through the different habitats. In this video, we are going to learn about the characteristics of living things. So now let's move towards the lesson. Students, now let's move towards the last point of this lesson, characteristics of living things or organisms. We see so many living things and non-living things in our surroundings, but how can we identify or distinguish them? So here are some common characteristics we are going to learn in this point. So first characteristic of living thing, that all living things need food. सभी living things को जो है वो food लगता है. So in the first or in second lesson we learn that food is required to the plants and animals also. Animals and human beings need food for the energy and different tasks they do, and plants prepare this food through the process of photosynthesis, or we can say that soil, water and the sunlight is the food of plant. So we can say that this is the first characteristic of the living organism. Now second characteristic of the living organism, that all living things show growth. Growth means you saw yourself also. That means when you are so much young or when you are at your childhood, see your pictures, you are so different at this time from your childhood. That means human beings grow in height and weight, and also the animals, we can say that their young ones grow into the adults. Same this happens with the plants also. Plants also grow in the different size. That means we can say that the second characteristic of the living thing is that they show the growth. Now let's see the third characteristic of the living things, that all living things respire. Respire means we cannot live without the breathing. We inhale and exhale the air. Breathing is the process of respiration, है ना. मतलब सांस लेना एक respiration की एक process है. We will learn about this detail in the 7th standard of what is the respiration. But in this process, just remember that oxygen that we take is used by our body. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे बॉडी में यूज्ड हो जाता है, and the carbon dioxide is produced and it is released, or we exhale the carbon dioxide also. Animals also do the same. Animals में भी जो है वो respiration होता है, but फर्क सिर्फ इतना होता है, the mechanism is the different. That means we can say that the earthworm breathe through their screens, or we can say that fishes have gills for the respirations and so on, है ना. सेम थिंग्स जो है वो प्लांट्स के साथ भी होती है. प्लांट्स आल्सो रेस्पायर. प्लांट्स में जो स्मॉल ओपनिंग्स होती है लीव्स के अंदर, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, हियर द गैसेस ऑफ एक्सचेंज हैपन इन द प्लांट्स आल्सो. सो रेस्पिरेशन इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Now next characters is the all living things respond to stimuli. Now what is stimuli? All living things respond immediately to the sudden change that makes us respond to them, and that is called a stimuli. मतलब किसी भी चीज की तरफ जब हमारा कोई सडन रिएक्शन होता है तो उसे स्टिमुली कहा जाता है. एनिमल्स भी जो है सेम स्टिमुली को जो है वो क्या करते, रेस्पॉन्ड करते. जैसे कि देखो, आप किसी भी वाइल्ड एनिमल के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर अगर आप आपकी गाड़ी का लाइट फ्लैश जब करते हो, सो दे रैन अवे, है ना. या फिर प्लांट्स भी जो है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को. उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इन मिमोसा प्लांट. मिमोसा प्लांट इज कॉमनली नोन एज टच मी नॉट प्लांट, है ना. अगर आप उसके लीव्स को हाथ लगाते हो, सो दे बिकम फोल्ड
और इट इज़ क्लोज्ड, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। या फिर ह्यूमन बींग्स का आप एग्जाम्पल अगर देखते हो तो कोई भी शार्प चीज़ अगर आपके हाथों को या फिर पैरों को चुभती है ना, तो आप अपना हाथ जो है वो जल्दी से निकाल लेते हो। तो इसे कहा जाता है कि स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करना, है ना। इसी को जो है हम कह सकते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स की। Now next characteristics we are going to learn is that the living organisms and the excretion. Now what is mean by excretion? The process of getting rid of waste material by the living organism is known as excretion. हमारे बॉडी के बाहर जो कुछ हम गंदगी डालते हैं, जो कुछ वेस्ट मटेरियल हम डालते हैं, उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। जो हम फूड खाते हैं, है ना, द फूड दैट वी ईट इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड बाय आवर बॉडी। उसमें से बहुत कुछ खाना जो है वो हमारे बॉडी को लगता नहीं है। एंड दैट रिमेनिंग फूड इज वी थ्रो आउट आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड द वेस्ट, है ना। और एनिमल्स जो है सेम वही प्रोसेस से जो है वो अपना क्या करते हैं, वेस्ट बाहर डालते हैं। सेम एज प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन जो है वो होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी पूरे बॉडी को जो है किसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो उसे बाहर फेंकते हैं, क्योंकि प्लांट्स एक्सक्रीशन में जो है कुछ पॉइजनस और हम कह सकते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, तो वो प्लांट के लिए अच्छे नहीं होते। सो दैट इज दे गेट रीड ऑफ दिस मैकेनिज्म, मतलब प्लांट्स में भी जो है वो एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग इज दैट द डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन चाइल्ड, मतलब सभी लिविंग थिंग्स को जो है वो अपना खुद का बच्चा रिप्रोड्यूस करते हैं क्या? Yes, we can say that plants and animals reproduce. Animals reproduce their own child, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स जो है वो अपने जैसे ही यंग वंस को जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। और कुछ जो है वो एनिमल्स क्या करते हैं, दे ले एग्स, है ना। सो इन दिस वे दे रिप्रोड्यूस। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड, बट इन द प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, बट देयर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज द डिफरेंट। उसमें हम कह सकते हैं कि दे रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स, है ना। सीड्स जर्मिनेशन जब हम करते हैं तो प्लांट से जो है वो सैपलिंग, है ना, और फिर उससे जो है वो ट्री बनता है। या फिर सीड का अगर कोई पार्ट है तो उससे भी जो है वो क्या होता है, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि पोटैटो का प्लांट जो है वो बर्ड से आता है। या फिर दूसरी अगर हम मेथड देखते हैं रिप्रोडक्शन की प्लांट्स की, तो उसे हम कह सकते हैं प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू द कटिंग। सो देयर आर द वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आल्सो। सो वी कैन से दैट द all living things reproduce their own kind. Now next point is the do all living things move? सभी living things जो है वो move कर सकते हैं क्या? In the chapter 8 in body movement lesson we learn about the movements of animals. हमने जो है वो अलग अलग animals के जो है वो movements देखे, human body के भी देखे हैं। बट वॉट अबाउट द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स जो है उससे हमने लिविंग थिंग्स में ही इंक्लूड किया है। द रूट्स ऑफ प्लांट एंकर्ड इन द सॉइल, है ना। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में एंकर्ड होते हैं, फिक्स होते हैं। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट्स बिकॉज दैट्स व्हाई दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और प्लेस टू प्लेस, बिकॉज सब्सटेंसेस लाइक वाटर और मिनरल और सॉइल, है ना, दिस इज द फूड ऑफ प्लांट, वी कैन से दैट। सो उसे वो चाहिए होता है, इसीलिए वो जमीन के अंदर फिक्स्ड होते हैं। बट यू कैन सी द मूवमेंट इन प्लांट्स ऑल्सो। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं भी जा सकते हैं, बट फिर भी जो है वो प्लांट्स में मूवमेंट जो है वो दिख सकती है। जैसे इसके पहले मैंने कहा था, देखो मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट जो है उसके लीव्स को अगर हम हाथ लगाते हैं तो वो क्या करता है, अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है। या फिर क्लोजिंग एंड द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, लीव्स की जो मूवमेंट होती है, ये सारे जो है हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट में डाल सकते हैं। तो आप लोग कहोगे कि मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो मूवमेंट करती है, जैसे कि कार देखो, बस देखो, या फिर क्लाउड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते, तो फिर इसे हम लिविंग थिंग्स में क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते? अभी तक जो हमने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमने देखे कि उन्हें खाना लगता है, तो आप बोलोगे कि मिस यस हम पेट्रोल और रॉकेल या फिर डीजल गाड़ियों के अंदर डालते तो वो उनका खाना हुआ, तो वो भी फिर
लिविंग थिंग्स में आ सकते हैं। तो जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कॉमनली हमने अभी डिस्कस किए हैं, वो अगर उसको अप्लाई होते हैं तो उसे हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सेम एज हम दूसरा और एक पॉइंट उसमें देख सकते हैं, या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग्स डाई। एक पर्टिकुलर एज के बाद कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने दो, दे कैन सर्वाइव ओनली विथ अ पर्टिकुलर टाइम, है ना। या फिर कोई एनिमल्स जो है देखो, उनकी जो है वो जिंदा रहने की उम्र या फिर आयु ज़्यादा रहती है, बट एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद जो है वो मर जाते हैं। रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो अपने स्पेसीज को क्या कर सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने जो है ना, वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है वो डाई हो जाते हैं। सो दीज आर द common characteristics of living organisms we discussed in this point. Hello students, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Now let's discuss about the small and the last point of this lesson. What is life, है ना। तो फिर life क्या है? So, looking at the diversity of living beings around us, जो कुछ हम डाइवर्सिटी हम हमारे आजू बाजू में देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं या फिर एनिमल्स देखते हैं, ह्यूमन बींग्स देखते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं, उसमें जो डाइवर्सिटी से देख सकते हैं। सो वी कैन ओनली कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल, नथिंग दैट, है ना। मतलब लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है, because it is not easy to answer what is actually means life also. Okay students, so this is the end of our 9th lesson. So please keep watching videos, read the lessons carefully and take care. Thank you.